is A, B, C, D. In 4-point lining, machine measures H2, achieves H1 by the relation H1 is equal to I into H2. In this case, in 3-point lining, you have to feed versine at every location. And this versine, as I mentioned, is calculated from RT3 manual HX, HY, SZ, HW. ये सारे versine आपको निकालने होते हैं. So you have to give versine at the lining trolley location. In this case, versine is achieved by the machine based on measurement at trolley B. In addition to that, we have to give a correction at the front trolley location, which I called front offset correction in both the cases if we are going for design mode of lining. And this front offset calculation is given from ROC, realignment of curve. So the curve that you want to achieve, you decide that curve, and accordingly whatever slew is required for achieving that curve, that becomes your front offset value. So you write these front offset value also. And in 4-point lining, in transition, you have to give in addition some correction which we call VM correction, that is versine correction. So in 4-point lining, you have to give FD, you have to give VM correction. In 3-point lining, you have to write versine value at every location and front offset value. So this is how you complete your lining work. Then we started covering leveling, and in leveling I said we have a 2-chord leveling system, left rail and right rail. One rail is taken as datum rail, so that rail is corrected first by this chord method. ये एक pendulum का नक्शा दिखाया था, ये दिखाया था. So we take one rail as datum rail. For correction of lining, we take one rail as a reference rail. In this case, we take one rail as datum rail. That rail is first corrected, and then through this pendulum we feed the value of cant that we required. If we require cant equal to 0, we will accordingly feed cant equal to 0. If it is some value depending on the super elevation required for the curve, we will feed that value and machine will automatically achieve that value. So in leveling, we also mentioned that there is a concept of general lift. So even if you are going for simply tamping of your track, you need to give certain amount of general lift during tamping, and that is required because you have certain undulations in your track. You need, one is, ये figure में ऐसे just scroll कर दे रहा हूँ, you will just remember what I covered. So there are some certain undulations in your datum rail, there are certain sags in your datum rail. So because of those sags and those undulations, many times so happens that at the tamping location you don't get any amount of lift. Nil lift means your packing or correction of level is not going to be effective. So you need to have certain lift. For giving that lift, some amount of general lift or minimum lift, I should say, must be given to the track. And then we discuss the method of giving general lift, and we said this general lift is given in this format. एक ये format दिखाया था. You go on raising your cord slowly and gradually, and finally you come to a situation where your rear trolley comes to the general lifted track. So if this is 30 millimeter, this has been lifted by 30 millimeter. In the front tower, you have already fed a value of 30 millimeter. So this cord becomes horizontal, and as you proceed, your track becomes completely horizontal, ensuring, if this was a perfectly level track, ensuring 30 millimeter lift at every location. And when you have a 30 millimeter lift at every location, in that case, your tamping is going to be effective. You can correct the cross level difference between left rail and right rail, or whatever. Even if you want to slew your track, you have reduced the friction between sleeper and ballast, and you can slew the track. So all these advantages you get if you provide some amount of minimum lift. But if you have undulation in the track, in this situation, suppose I get an undulation, this undulation is reflected at this point. So it is not that you are completely eliminating your defect, but certainly the defect size is being reduced. यहाँ जो defect होगा, यहाँ पर size उससे थोड़ी कम हो जाएगी, almost 1/3 हो जाएगी अगर मैं ये 1/3 position पे मानता हूँ तो. So for this reason, a method was devised to calculate your value of general lift, and I said that if this is your situation, you will survey your track. Maximum amount of hump कितना आ रहा है, maximum amount of dip कितना आ रहा है. This should be the minimum amount of general lift. This x plus y should be the minimum amount of general lift, and we give an additional 10 millimeter lift for any variation in this estimation. So normally your general lift is going to be x plus y plus 10 millimeter. This much amount of general lift you are going to provide. So this actually should be x plus y plus 10 millimeter. And with this general lift, normally you start your tamping. If you are
doing a normal tamping. You have not decided to bring the track to certain level. आप सिर्फ smoothen कर रहे हो track को. So you have given a constant general lift of this value and track will be smoothened. Smoothened in the sense that all defects will not be eliminated. These defects will not be eliminated completely, but certainly the size of these defects will be reduced and the location of this defect in the process will be shifted backward. ये थोड़ा backward जरूर shift कर जाएगा and size of this defect is going to get reduced. So this much I think we covered in the last class. यहीं थे हम लोग last time? Yes, sir. Yes, sir. Right? ठीक है? Okay. So starting from this point, so what I said is we correct the datum rail and then we achieve the cant required on other rail. When we are working on a curve, a typical situation में है, जब आप फील्ड में जाओगे ये सिचुएशन आपको दिखेगी कि you have a very new machine and this machine goes into the block. ये वाला स्लाइड कवर किया था क्या जो मैं दिखा रहा हूँ अभी? कुछ याद आ रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. Most probably I didn't cover this. So कई बार आप जाओगे जब फील्ड में जाओगे तो बिल्कुल नई मशीन आपको मिलती है and this machine goes for correcting your super elevation in the curve. और जब वो मशीन काम करके आएगी तो आपका पिडलाई बोलेगा सर ये मशीन लगता है ठीक नहीं है, ये सुपर एलिवेशन ठीक नहीं कर पा रही है. इफ यू गो इनटू डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट हैव ऑकर्ड, एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि द अमाउंट ऑफ जनरल लिफ्ट वी आर गिविंग इज नॉट करेक्ट. सर्टेन अमाउंट ऑफ जनरल लिफ्ट इज बीइंग गिवन टू द डाटम रेल एंड एज आई मेंशन इन कर्व्स नॉर्मली दिस वी टेक एज द डाटम रेल. इनर रेल को हम डाटम रेल लेते हैं. सो द वर्किंग प्रिंसिपल इज जैसे ही आप मशीन ब्लॉक में जाती है आपने इसमें कुछ जनरल लिफ्ट दिया, आपने ये जनरल लिफ्ट दिया, सो योर दिस रेल विल बी ब्रॉट टू सम लेवल. पहला काम मशीन ये करेगी. देन इट विल, यहाँ जो भी कैंट आ रहा है, जो भी बच रहा है उससे मशीन को ज़्यादा मतलब नहीं है. आपने कहा कि मुझे कैंट, सपोज दिस इज 20 मिलीमीटर, आपने उसके बाद कहा कि जनरल लिफ्ट इज 20 मिलीमीटर एंड यू सेड आई वांट कैंट इक्वल टू से 50 मिलीमीटर. सो दिस ट्रैक विल बी लिफ्टेड सो दैट बिटवीन दीज टू रेल्स यू गेट अ सुपर एलिवेशन ऑफ 50 मिलीमीटर. दिस इज द नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल. वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि डाटम रेल को पहले लिफ्ट किया and then whatever super elevation you have fed, accordingly this rail will be raised so that you get that super elevation. But in this method of working, three different situations may come. Let us see what situations may arise. So let me show you this table. Now suppose this curve had a designed super elevation. इसकी 30 super elevation थी. This is what you wanted as per your calculation. आपको 30 सुपर एलिवेशन वहां चाहिए था 30 मिलीमीटर. पिडलाई सर्वेड इस ट्रैक, नॉर्मली दे आर नॉट सर्वेइंग इस ट्रैक. नॉर्मली ये लोग एक अंदाज से कह देते हैं कि मुझे जनरल लिफ्ट इतना चाहिए. तो सपोज ही डिसाइडेड दैट आई विल गिव अ जनरल लिफ्ट ऑफ 20 मिलीमीटर. सो दिस इज व्हाट यू वांट टू अचीव एंड यू हैव डिसाइडेड अ जनरल लिफ्ट ऑफ 20 मिलीमीटर. नाउ एग्जिस्टिंग कैंट कैन बी एनी ऑफ दीज वैल्यूज. नाउ फर्स्ट लेट मी सपोज दैट एग्जिस्टिंग कैंट इज करेक्ट. सो ऑटोमेटिकली दिस इज 30 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी 30 मिलीमीटर है. सो ट्रैक इज परफेक्टली ओके. Machine goes into the block. As per the working principle, machine क्या करेगी इसको? It will lift this by 20 millimeter. Cant left will be 10 millimeter. ठीक है ना? And then it will lift this to achieve a net cant of 30 millimeter. So further इसको और 20 millimeter lift कर लेगी. So your net cant will be this value. So you gave a general lift of 20 millimeter on inner rail. Similar amount of lift has been provided on the outer rail. So cant of 30 millimeter has been retained by the machine. कोई दिक्कत नहीं. Machine has performed the function it was supposed to perform. It has given a super elevation of 30 millimeter. Next situation is when your existing super elevation is 20 millimeter, less than your designed super elevation. अगर ये less than designed super elevation है, so let me take this as 20 millimeter. You have given a general lift of 20 millimeters, so machine will raise the datum rail. It will bring it to somewhere here. Now after this, the net cant is equal to 0. यहाँ पर कोई cant नहीं बचेगा. Second stage में जाने के time में this cant is equal to 0. You have said I want a cant of 30. That is my design cant. So this will be lifted by 30 millimeter, and automatically you will get a net cant of 30 millimeter. यहाँ तक भी कोई इशू नहीं आया. Fine, कोई दिक्कत नहीं है. So if it is equal or less, इन दोनों केस में कोई इशू नहीं है. But suppose my existing cant is very high. For some reason we are working at the BCM site or track removal site. कई बार हमारी कैंट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से इनर रेल पे काफ़ी लोड आता है.
सो हमारी जो कैंट है वो जो एग्जिस्टिंग कैंट था उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो नाउ सपोज दिस कैंट हैज़ बिकम 60 millimeter. This cant is 60 millimeter. When your machine comes, you have given in that case also a general lift of 20 millimeter. आपने 20 का general lift दिया. Net cant lift is 40 millimeter. Now you feed into the machine that you want a cant of 30 millimeter. That means this is required to be lowered by 10 millimeter, which your machine cannot do. So what machine will do? It will leave your track at that position. And when the PIDLI measures after the machine working, he will say that machine has left a cant of 40 millimeter instead of 30 millimeter. So it has happened because you have given a general lift of 20 millimeter. अगर आपने minimum general lift यहाँ decide करते समय had you given this value equal to 30 millimeter, अगर आपने इसको 30 दिया होता, so net left would have been 30 and automatically इसको लिफ्ट करने की जरूरत नहीं, बट मशीन वुड हैव अचीव्ड एटलीस्ट द कैंट ऑफ 30 मिलीमीटर. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज, एंड इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, जब आप फील्ड में जाओ यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इज वेरी कॉमन. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज, यू हैव टू मेजर द सुपर एलिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक इन एडवांस एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कितना जनरल लिफ्ट देना है. लाइक इन दिस केस द जनरल लिफ्ट वुड हैव बीन 60 minus 60 इज द एग्जिस्टिंग माइनस 30. कम से कम इतना जनरल लिफ्ट तो आपको देना ही है 30 मिलीमीटर का. इट कैन बी मोर देन दिस. अगर 30 की जगह 40 पे देते नो इशू, ये 10 मिलीमीटर और इज होता अच्छा ही होता आपके लिए, बट मिनिमम 30 आपको देना ही है. सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है ना. सो मिनिमम 30 यू नीड टू गिव द जनरल लिफ्ट इन सच सिचुएशन. क्लियर हो रहा है जो कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the general principle is, or the conclusion of general lift is, in normal situation, your general lift is going to be x plus y plus 10 millimeter. If you are in a curve and the existing super elevation is less than the designed super elevation, in that case, जो आपने x plus y निकाला था, जो normal तरीका है आपका x plus y plus 10, it will remain as same. That is the general lift required for datum rail. But if existing super elevation is more than your designed super elevation, in that case your general lift becomes algebraic difference of higher and lower point on the rail, that is x plus y of datum rail, plus maximum difference between the existing and the designed super elevation, that is in this case 60 minus 30, and then plus x plus y. This should be your general lift. X plus y is the undulation which is required to be taken care of. So this is how you should calculate your general lift. Now when I am talking of general lift, basically I am smoothing my track. क्या कर रहे हैं हम? Now suppose I have a track with a profile. This red line is my existing track profile, and there is a sag at this location. यहाँ पर एक sag है. So when I am giving a uniform general lift, means this general lift is going to be in this direction. I am going to take the same profile as of my existing track. क्या होगा? मैंने सिर्फ general lift feed किया है. So what the machine will do? Front tower is already in the sag track. So you have provided, इस chord को आपने यहाँ पर रखा है. This is H plus some general lift. So what machine will do? This is the location where machine is correcting your track. So machine क्या करेगी यहाँ पर track को कैसे lift करेगी? It will stretch a chord like this. Then it will bring the track to this position. यहाँ से ला करके ट्रैक को इस पोजीशन पे लेकर के चली आएगी. दिस इज द गैप. सो दिस गैप विल बी फिल्ड एंड योर ट्रैक विल बी, योर डाटम रेल विल बी ब्रॉट टू दिस पोजीशंस. Accordingly, the other rail will also be brought to the same position. Now, when you are bringing it to this position, what you are doing is you are moving as per the profile of your existing track. So you are simply smoothing your track. So this is called smoothing mode of leveling. आप smoothen कर रहे हो. But as a field engineer, many times or normally what you should do is your rail level should have been at this location. So your requirement is you should try to bring your track to this position. इस level पे लाना चाहिए आपको track को. That is your ideal requirement. ये आपकी requirement है. So if that is the situation or that is the requirement, what could have been done? क्या कर सकते थे हम? So this is my at the front tower. This is my depression. इस location पे मेरा depression ये है. This is equal to y. So what I would have done is मैं यहाँ पर इसको y lift करता. क्या करता मैं? ये रेजिडुअल एरर रह गया.
मैं क्या करता, इसको लिफ्ट करता y वैल्यू से, एंड आई हैव मेड माय कॉर्ड, यू कैन से दिस कॉर्ड पैरेलल टू माय डिजायर्ड लेवल. अगर मैं इस कॉर्ड को इसके पैरेलल कर देता, देन एट दिस लोकेशन this gap has increased to this value and this track will be lifted to be brought to this position parallel to your cord. So this is what would have been done. ये ट्रैक यहाँ से इस लेवल पे चली जाती, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये ऐसे ऐसे लिफ्ट होते होते इसी लेवल पे चलती चली जाएगी. So as you are moving forward, you keep on measuring this value, go on lifting this, similar to the FD value we were feeding in alignment correction. Similarly in level correction, whatever level difference from design and existing level is there, provide that kind of lift in the front tower and you can bring the track to the desired horizontal level. Clear हो रहा है? Yes, sir. Okay, so this is called design method of leveling. इसको design method of leveling कहते हैं. So similar to your design mode of tamping in which we were feeding FD value, in design mode of leveling, you have to survey your level difference at every location from the designed position, whatever is your desired level. And then you have to write those values on the sleeper to be fed by the machine operator in the front cabin, ताकि इस cord को ये lift करके इस position पे ले आए. And then you will get the track which will be completely horizontal. Right? So these are the two modes. One is smoothing mode when we are feeding general lift. General lift means we are eliminating short wave, we are not eliminating short wave defects, we are reducing short wave defects within the machine base length. मशीन की जो कॉर्ड लेंथ है उसमें छोटे छोटे जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ. बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर डिजाइन मोड ऑफ लिफ्टिंग वी आर फीडिंग द एक्चुअल लिफ्ट वैल्यू रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट हाइट, एंड इन दैट केस ऑल शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव डिफेक्ट्स आर गेटिंग एलिमिनेटेड. सो वी आर ब्रिंगिंग द ट्रैक टू सर्टेन लेवल, एक लेवल पे मैं लेके आ रहा हूँ. That is the difference between smoothing mode and design mode of leveling. So in this process of leveling, you are lifting your track. जब आप track को lift करते हो, तो maybe your lift may increase to 50 mm, 30 mm, 20 mm, कुछ भी values आ सकती है. So if your lift is going to be very high, in that case, you need to go for double insertion. जो आप packing करते हो, तो आपको ballast को 2-3 बार tool से उसी location पे, उसी lift position पे ballast को पैक करना पड़ेगा, so that you can put extra ballast and you can have a compacted ballast under the sleeper to support your sleeper. So that means the instruction in your manual is, if your lift is going to be up to 30 mm, one insertion is sufficient. If it is more than 30 mm, you need to go for double tamping at the same lifted position. आप सिर्फ lifting position वहीं रहेगी, tamping tool दोबारा अंदर जाएगा और दोबारा उसको पैक करेगा. If it is more than 50 mm, इट इज नॉट परमिटेड. आपको 50 मिलीमीटर से ऊपर लिफ्ट एक बार में नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि टैंपिंग मशीन उसको ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाएगी उस ट्रैक को. सो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर फाइनल लेवल कि आपकी लिफ्ट बहुत ज़्यादा ना है. जो भी आप, अगर आपको ज़्यादा लिफ्ट देना है, मे बी अगर 80, 90 या 100 मिलीमीटर देना है, देन मे बी यू विल हैव टू गो फॉर मल्टीपल राउंड ऑफ टैंपिंग, सो दैट इन ईच टैंपिंग योर लिफ्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 मिलीमीटर. So this is how the leveling is done. Now this was regarding level correction, but in your curve you have to provide cant also. आपको cant भी provide करना है, super elevation भी provide करना है. So super elevation provide करने के लिए, now suppose this is my curve. ये मैंने curve बनाया. This dotted line is represented by is representing inner rail, and this is your outer rail. This is your transition portion. This is your transition portion of the curve. So straight to transition, transition to curve, curve to transition, transition to straight. So at this location, your super elevation theoretically is 0. At this location in your transition, this is 20. Constant super elevation 40, 40, 40. Then again in transition, this is 20, and then this value equal to 0. So in your machine there are two system of feeding this super elevation. क्योंकि आपके पास पेंडुलम आपने देखा, एक बीच में भी पेंडुलम है, एक फ्रंट में भी पेंडुलम है, एक रेयर में भी पेंडुलम है. So feeding is always done from the front pendulum. But in your machine there is a system where the operator can operate the cant value in the working cabin. Working cabin means ये जो मशीन आपकी है, ये मैंने कहा R, M and F होता है.
So this is your front location. At this location where the operator is himself sitting, वो यहीं बैठा होता है. आप अगर यहाँ पर actual super elevation लिखोगे तो ये इसको दिख जाता है. He has a potentiometer. He can, though in this pendulum there is no system of feeding your cant value, but there is a potentiometer where if you feed the cant, ऑटोमेटिकली फ्रंट में कितना इसको लिफ्ट करना है या कितना कैंट देना है, ये मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेती है. So this method of feeding becomes very easy because the operator is going to feed the cant as is required, because this is where he is achieving the cant. और वहीं पर वो कैंट फीड कर रहा है. अगर यहाँ 20 चाहिए तो इसने 20 फीड कर दिया, मशीन यहाँ पर 20 अचीव करेगी. कॉर्ड को जितना आगे रेज करना है वो मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी. इसको समझने के लिए लेट अस सी दिस सिचुएशन. अगर इसको देखो, this is the kind of situation. Now these are the two cords which are moving. This cord is for this one and this cord is moving on inner rail. So at this location यहाँ पर कैंट कितनी है? कैंट is equal to 0. इस लोकेशन पे जाते हो कैंट is this value. ठीक है ना. ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला और ये एक ऑटोमेटिकली एक स्लोप पे है. सो यहाँ आपने ये कैंट दिया. सो यहाँ पर इस स्लोप के हिसाब से ये ऑलरेडी मशीन ने अचीव कर लिया, ये करेक्टेड है. इसके हिसाब से इस कॉर्ड को ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर लेगी और यहाँ पर जो कैंट चाहिए वो आप अचीव कर लोगे. व्हेन यू आर इन अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व, दिस इज ऑलरेडी ऑन अ कैंटेड ट्रैक. एट दिस लोकेशन सपोज योर कैंट इज 40, आपने यहाँ 40 फीड किया हुआ है. 40 ऑलरेडी मशीन देखेगी यहाँ 40 है. एट दिस लोकेशन यू फेड 40. सो दिस लोकेशन ऑटोमेटिकली दिस विल बी रेज टू हैव अ कैंट ऑफ 40 मिलीमीटर. कोई दिक्कत नहीं है. एज यू गो डाउन, सो अकॉर्डिंगली वर्किंग केबिन पे जो भी आप फीड करते हो वो मशीन ऑटोमेटिकली ले लेती है और फ्रंट में कितना उठाना है उसको कॉर्ड को वो खुद ही उठा लेगी. आपको उसमें कुछ नहीं करना है. ठीक है ना. बट देयर इज अदर सिस्टम ऑफ फीडिंग वेयर यू हैव टू फीड एट द फ्रंट केबिन, और ऑलमोस्ट 60-70% मशीन में फ्रंट में कैंट फीड करने का सिस्टम है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. नाउ लेट मी सी द मूवमेंट ऑफ दिस कॉर्ड. इस लोकेशन पे मैं कॉर्ड देखता हूँ. I am achieving my cant at this point. मैं अपने whatever cant I am achieving, this is the location where I am lifting my track. But I say I will be feeding at this location. मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ. ठीक है ना. फ्रंट पे फीड कर रहा हूँ. अगर मुझे यहीं फीड करना होता तो मैं यहाँ पर कैंट कितना फीड करता? कैंट इक्वल टू 0. यहाँ पर मशीन अगर तुम यहाँ पर उसको कॉर्ड को यहाँ पर मैं अगर इस पे चढ़ाना चाहूँ तो माई कॉर्ड एक्चुअली इज लाइक दिस. ये कॉर्ड मेरी कुछ ऐसी है. मैंने यहाँ पर कहा कैंट 0, तो ऑटोमेटिकली कॉर्ड को जितना लोअर करना है मशीन लोअर करके यहाँ पर कैंट 0 अचीव कर लेगी. एक्चुअली योर अदर कॉर्ड इज ऑन अ कैंटेड ट्रैक. ये कैंटेड ट्रैक पे रेल पे उठी हुई है, बट आपने कहा मुझे कैंट 0 चाहिए तो इसने कॉर्ड को लोअर किया और यहाँ पर कैंट 0 अचीव कर लिया. कैंट अगर लोअर किया इसका मतलब यहाँ भी इसको 0 कर दिया. सो एक्चुअली योर कॉर्ड इज गोइंग टू बी एट दिस पोजिशन. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये जो दिख रहा है कुछ इस टाइप का कॉर्ड रहेगा आपका. ठीक है ना. सिमिलरली अगर आप इस लोकेशन पे जाते हो, यू वांट 40 एट दिस लोकेशन, बट यू कैन सी फ्रंट इज हैविंग अ सुपर एलिवेशन विच इज मोर देन 40. इसको 40 रखने के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सुपर एलिवेशन चाहिए. बट अगर आप वर्किंग केबिन में फीड करो तो आप यहाँ पर 0 फीड करोगे, यहाँ 40 फीड करोगे. ऑटोमेटिकली यहाँ जितना अचीव करना है 52 चाहिए, 60 चाहिए, फ्रंट वाला ऑटोमेटिकली उतना रेज कर जाएगा. सो ऑपरेटर इज नॉट बॉदर्ड. उसको जितना कैंट यहाँ लिखा उसने उतना फीड कर दिया. सिमिलरली ऑपरेटर ने यहाँ 40 फीड किया. ये वाली जो मशीन है ये मशीन ऑलरेडी दूसरी रेल लोअर होते जा रही है. सो एट दिस पॉइंट योर कैंट इज नॉट 40, बट सिंस यू हैव फेड 40, this is also 40, so your cord will be kept horizontal by the machine automatically. So what operator has to do, he has to simply feed the value जो यहाँ लिखा हुआ है. अगर वो वर्किंग केबिन में फीड कर रहा है तो, अगर वर्किंग केबिन में फीड कर रहा है तो जो जहाँ जितना वैल्यू चाहिए उतने वैल्यू को लिखता चला जाएगा हर लोकेशन पे, और कॉर्ड ऑटोमेटिकली अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करती चली जाएगी. यहाँ इसको 0 चाहिए, इसने यहाँ 0 फीड किया, ये कॉर्ड ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ले लेगी फ्रंट में. But if he is feeding in the front cabin, then he has to do certain calculation. उसको फिर calculation करना पड़ेगा, because like at this point, this is the location. If you want to achieve cant equal to 0 at this point, in the front you have to feed cant equal to 0. यहाँ पर आपको cant 0 feed करना है. यहाँ पर अगर आप cant 40 achieve करना चाहते हो, so maybe you have to feed at this location cant equal to 52, so that you achieve 40 at this location. अगर आपको यहाँ पर cant 40 achieve करना
हैं. So at this location, though is less than 40, you have to feed cant equal to 40. ठीक है ना. So a small calculation will be required to be done by the PIDLOI कि मुझे cant कैसे लिखना है. And this method has been displayed in this diagram. यहाँ दिखाया हुआ है. Now when you are moving like this, this is your RMF. M is where you are achieving the cant. Just see how M is moving. ये M यहाँ पर M पे 0 है, यहाँ पर F पे भी. You are now going to enter into transition at this location. F पे भी आपने 0 किया. यहाँ पर M पे 0 है, but actually F पे cant is this value, but you are going to feed this equal to 0. ठीक है. So यहाँ से यहाँ तक you are going to feed in front this value equal to 0. फिर यहाँ से जैसे ही आप आगे जाते हो, your M is going to move along this cant. M अगर इसके cant के along move करेगा, so at this front you have to feed super elevation equal to this, so that you get your cant equal to this value. ये कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? नहीं आ रहा है? Yes. अभी इसको मैं थोड़ा मैं जान के फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि जब एक दो बार आप मशीन देख लोगे, काम करोगे, अभी सिर्फ आइडिया ले लो कि इस टाइप से मशीन काम करती है. ठीक है ना. सो ये जैसे ही आप मूव करते हो, योर इंटेंशन इज योर दिस M शुड मूव अलोंग दिस. ये M जो है, इट शुड मूव अलोंग दिस, एंड फॉर दैट व्हाट यू शुड बी फीडिंग इन योर फ्रंट टावर. फ्रंट टावर में क्या फीड करोगे? तो फ्रंट टावर में यू विल बी फीडिंग वैल्यूज लाइक दिस. यहाँ से यहाँ तक फ्रंट में 0 आएगा, देन दिस विल इंक्रीज लाइक दिस, देन दिस विल गो लाइक दिस. यहाँ पर भले आपको 40 चाहिए था, बट यू विल कंटिन्यू टिल योर M कम्स टू दिस पॉइंट. आप और F यहाँ पर आएगा, सो दिस वैल्यू विल बी मोर, देन अगेन यू विल कम हियर. सो ये बहुत ही अजीब सा एक डायग्राम बन जाता है. और जब आप फील्ड में जाओगे, आप देखना कि ऑपरेटर कुछ लोकेशन पे ही नोज कि मुझे यहाँ पर निगेटिव फीड करना है, बट इन लोकेशंस पे ऑपरेटर अक्सर गलत करता है. होता क्या है कि पिडलाई वही कैंट लिख देता है जो उसने कर्व पे अचीव किया हुआ जितना कैंट चाहिए, और ऑपरेटर अगर फ्रंट केबिन में भी फीड कर रहा है तो वो वही कैंट फीड करने लगता है. सो द प्रॉब्लम कम्स इज, जैसे ही मान लो उसने यही कैंट फीड किया जो कैंट यहाँ लिखा हुआ है. सपोज योर मशीन इज हियर, आपने यहाँ पर जो कैंट था वही फीड कर दिया. सो एट दिस लोकेशन वेयर नो लिफ्ट वाज रिक्वायर्ड, योर ट्रैक हैज बीन लिफ्टेड. सो ट्रैक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर कि आपको सुपर एलिवेशन 0 चाहिए, वो 0 कीजिए, यू विल स्टार्ट गेटिंग सम वैल्यू. सो दिस इज हाउ दिस कैंट इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड. ये जब आप फील्ड में जाओगे, एक बार इसको समझना वहाँ पर, तब आपको ये मूवमेंट समझ में आ जाएगा कॉर्ड का. इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इट विल टेक सर्टन टाइम. सो अल्टीमेटली इफ आई टेक वन केस, एक केस एग्जाम्पल लिया हुआ है. इफ आई टेक दिस एज द सिचुएशन, RMF, this is B, this is A. So you can see this is how your cant is going to be fed. ये front tower में जो cant भर रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप से आएगा. ये front tower का movement है. So you can see when at this location, if this is your R, M and F. So you want to achieve 40 at M. At this location you have to feed this value as 52. A very common mistake, हम लोग 40 ही feed करते हैं. हम लोग 40 से ज़्यादा नहीं फीड कर रहे हैं. सो हमारी जब कर्व ठीक होती है, तो अल्टीमेटली अगर हम 40 फीड करते रहते हैं तो हमारी कर्व यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. कर्व कुछ ऐसे बन जाती है जब आप सुपर एलिवेशन देखोगे तो सर्कुलर पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से ना स्टार्ट हो करके ये प्रोफाइल ले लेता है. यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा प्रोफाइल ले लेता है, यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा प्रोफाइल ले लेता है, ये कुछ ऐसा प्रोफाइल ले लेता है. ठीक है ना. सो मुझे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं नहीं सुपर एलिवेशन अचीव कर रहा हूँ. जहाँ से मेरा रेडियस स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर कर्व का, जहाँ मुझे जितना सुपर एलिवेशन चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट सुपर एलिवेशन. सो वी नीड टू फीड आवर सुपर एलिवेशन व्हेन वी आर फीडिंग इन द फ्रंट केबिन इन दिस फॉर्मेट. ठीक है ना. सो इफ यू सी द डिफरेंस, इफ यू आर फीडिंग इन वर्किंग केबिन, जहाँ पर जितना सुपर एलिवेशन है, थियोरेटिकली 0, एक्चुअल 0, थियोरेटिकल 0, एक्चुअल 0, थियोरेटिकल 20, एक्चुअल 20, theoretical 40, actual 40, theoretical 40. So whatever is the theoretical value, if you are feeding in working cabin, you are feeding the same cant. And now in new machines, this is normally being followed. But if you have an old machine, पुराने machine में क्या था, which you have in large number, 60-70%, so उस केस में front cabin में ही feed करते थे. तो जब front cabin में feed करते हैं, so you want super elevation 0 at this point, ठीक है ना. So theoretically 0, this is your front tower location. So this is your R, M and F. So यहाँ theoretical F को मैं feed कर रहा हूँ, theoretically 0, actual 0. Come to this point. Sorry, come to this point first. यहाँ theoretically my super elevation is 12 millimeter, but up to this point in front ILA feeding equal to 0.
यहाँ मैं 0 भरूंगा तब मेरा m यहाँ पहुंचेगा. जब मैं यहाँ तक 0 जाऊंगा, now my m has come to this point. Now I want my m to move along this. So अब मैं यहाँ से इस स्पीड से अपने फ्रंट में कैन भरना स्टार्ट करूंगा. So this is how I am going to feed this can. अगर ये आपको नहीं भी पूरा क्लियर समझ में आया होगा, डोंट वरी, एक आध बार जाओगे मशीन पे देखोगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए. इसको मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा. जस्ट हैव एन आइडिया कि देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ फीडिंग इन फ्रंट केबिन एंड फीडिंग इन वर्किंग केबिन. Now whatever lift that we have given, there are two errors which are being created in that lift. मान लो जनरल लिफ्ट हमने 30 डिसाइड किया था. So because of two reasons, some corrections are required to be given. This corrections 100% not being applied by any machine operator. कोई नहीं अप्लाई कर रहा है. I'll just give you an idea. मैं इसके डिटेल में फिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अभी कोई अप्लाई भी नहीं कर रहा है और हो सकता है आप मशीन पे जाओ तो आपको पता भी ना चले जब तक कि एक दो बार आप इसको पढ़ करके आप करने की कोशिश नहीं करोगे. So I'll tell you why this K correction is required. Now when you are negotiating your curve, ये जो chord है, this is your front, this is your M, this is your R. So this chord you can see has shifted inside. ये curve, ये chord अंदर shift कर जाता है. When this chord has shifted inside, this height transducer board ये कुछ इस टाइप का होता है. Because of this curve, even your height transducer board has become inclined. दो सिचुएशन हो रही है. एक तो ये chord अंदर आ रहा है, दूसरा your height transducer board has become inclined. Now when you decided your general lift, आपने जो भी general lift decide किया था, you decided for a contact being created at this point. कि जब ये lift मैं करूँगा इसको तो lift करके ये मेरी chord की height है, मैं यहाँ तक lift करूँगा. But this chord has now shifted inside and this height transducer board has become inclined. So what is going to happen? The track will be continued to be lifted till your this point comes in contact with this chord. जब तक ये point chord के contact में नहीं आता तब तक ये lift होता रहेगा. So you decided a general lift of 30 mm, but because of this curve, this extra lift is going to take place. So this lift actually is going to be 30 plus K. So if you see Plazer literature, Plazer कहता है कि you need to correct your general lift when you are going into a curve. So when you are tamping, you are coming from straight, going into a curve. So this general lift value which was 30 for straight and you continue with the same value in the curve also, it is not correct. Curve में आपको general lift को थोड़ा reduce करना पड़ेगा. Otherwise, the datum rail of the curve or inner rail of the curve will be slightly lifted up by this K value. And this correction has been given by Plazer. और उसने अपने मैनुअल में एक करेक्शन दे रखा है. दिस करेक्शन इज गिवन समथिंग लाइक दिस. ये कह रहा है दिस इज स्टार्ट ऑफ ट्रांजिशन से आप करेक्शन अप्लाई करोगे. करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो जनरल लिफ्ट है उसको आप रिड्यूस करोगे बाय के वैल्यू इन दिस फॉर्मेट. सपोज दिस के वैल्यू इज 12 मिलीमीटर. आपने जनरल लिफ्ट आपने डिसाइड किया था. अगर मैं ऐसे करके ट्रैक लेता हूँ और मैं यहाँ से जनरल लिफ्ट देता हुआ आ रहा था, यहाँ से मेरी कर्व स्टार्ट हो रही है. So at this point I will reduce this general lift by 12 millimeter. That means this is going to be 12 millimeter और मेरी general lift कुछ ऐसे करके reduce हो जाएगी. This is what your manufacturer says and this is a standard practice being followed world over. हम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया तो हमारे कर्व में डाटम रेल थोड़ा लिफ्ट हो जाता है क्योंकि हमने कांस्टेंट जनरल लिफ्ट कर्व में भी दे दिया है. So we need to modify our general lift in the curved portion of the track by this 12 millimeter in this case. और ये वैल्यू कितनी होगी? This has been given by the manufacturer. Manufacturer ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है for different machine. This formula is different. If you see this formula, it will certainly depend on super elevation. We can easily estimate super elevation जितना ज़्यादा होगा, height transducer board उतना inclined होगा, radius जितना sharp होगा, chord उतना अंदर आएगा. Certainly these two factors are going to decide the K value. So you have to calculate this value and then accordingly you have to adjust your general lift in your curve. Similarly, another mistake that we are doing is in vertical curve. In vertical curve, as we have understood, if this is your vertical curve, हमारी मशीन क्या करती है? कांस्टेंट जनरल लिफ्ट देते हुए जा रही है. मैं एक पोजीशन पे आके रुकता हूँ. इफ आई एम गिविंग अ कांस्टेंट जनरल लिफ्ट, दिस इज द प्रोफाइल आई प्लान. मुझे हर जगह इतना जनरल लिफ्ट चाहिए. लेट मी कम टू अ पोजीशन वेयर रेयर ट्रॉली हैज बीन लिफ्टेड बाय जनरल लिफ्ट. फ्रंट टावर में मैंने H प्लस जनरल लिफ्ट प्रोवाइड कर रखा है. नाउ दिस कॉर्ड इज हॉरिजॉन्टल एज पर द प्रोफाइल क्योंकि ये भी H प्लस GL है और ये H है. सो मैं इस पोजीशन पे इसको हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ. Now, as per the working principle of the machine, track will be lifted to this point
ये सिर्फ इतना लिफ्ट करेगी ट्रैक को, यहीं तक लाएगी. इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग द ट्रैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये गैप इसको उतना ही मिल रहा है, इसी के बराबर. सो मशीन के वर्किंग के प्रिंसिपल के हिसाब से मशीन यहीं तक लिफ्ट करेगी. एंड वी हैव बीन टैंपिंग नॉर्मली वर्टिकल कर्व आप देखोगे हमें पता भी नहीं होता है कहाँ वर्टिकल कर्व है अपने सेक्शन में. वी डोंट हैव डिटेल ऑफ दोज वर्टिकल कर्व्स, इसीलिए हम वर्टिकल कर्व के बारे में वी आर नॉट बॉदर्ड. बट व्हाट मशीन इज डूइंग, जब आप मशीन से टैंप करो तो मशीन यहाँ पर लिफ्ट काफ़ी कम प्रोवाइड कर रही है. whereas you wanted a general lift of 30 millimeter. क्या करना होगा आपको, you need to increase the general lift or lift value जो भी आपकी है by a value so that this chord becomes something like यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल आ जाए और ये लिफ्ट this is equal to इतना एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि ये लिफ्ट आपको एक्स्ट्रा मिले यहाँ पर, इसके पैरेलल यहाँ पर इतना लिफ्ट मिल जाए. This is what is required to be done. So general lift is required to be increased. यहाँ पर general lift को आपको increase करना चाहिए. Similarly, if we have a vertical curve of this type, in that case, again ये हमने किया, chord को हमने lift कर दिया, this is becoming horizontal. So when this is horizontal, here your machine is providing extra lift, क्योंकि आपको track यहीं तक चाहिए था. That was the profile as per your radius of the curve. But आपने machine से tamp किया and you didn't take care of the problem being created because of this vertical curve, and this track is now being lifted to this point. ये track आपके ज़्यादा lift हो जा रही है. क्या करना था यहाँ पर? यहाँ पर आपको general lift को थोड़ा compromise करना था, reduce करना था. कितना reduce करना था? ताकि आपकी lift यहीं तक आए, means आपकी chord यहाँ तक जाए. So this much value of general lift was required to be reduced. So general lift मान लो अगर 30 आ रही थी, तो we need to reduce this by some value, maybe ये घट करके मान लो इसमें 20 के आसपास इसको रिड्यूस करना पड़ता, so that I'll give a general lift of only 10 millimeter at this location, so that my track is brought to the desired profile. Broadly समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. So this is what is again you will find missing in the field. ये आपको नहीं मिलेगा, लोग कर रहे हैं, हमने भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया, because this calculation itself seems to be a very complicated calculation. But all this is required to be done if we want to work with the machine in a perfect manner. And these corrections have been given by the machine manufacturer in their manual. And for that, ये जो देखो correction दे रखा है vertical curve में, it is called X correction. If you have top vertical curve, this correction is required to be added in the general lift. So this plus general lift हो जाएगा. If it is a bottom vertical curve, this is required to be reduced. Similar to what we saw, यहाँ पर आपको general lift को reduce करना है, यहाँ पर general lift को increase करना है, and this increase and decrease will be given by this formula. This formula is different for different machine. In the manufacturer's manual, you will find this formula has been given. So अगर इस formula को आप देखोगे, so let me show you where this has been given. ये आपको करना क्या है, you need to go to the manufacturer's manual. See, this is for MPT. So you can see correction values for the leveling system, K correction and X correction. ये manufacturer आज से नहीं 25-30 साल पहले से हमें दे रहा है, but before this manual, we were not aware that this correction is also required to be given. So now people are aware. I don't know whether they have started applying or not. You can see this is the formula that has been given, and accordingly some table has also been given. आपको ये कैसे calculate करना है. So this is the proper method of working. This is X correction. This is your K correction. So both X correction and K correction has been given in NT chapter of the manual. In this case, this is NT 28. So these corrections are also required to be applied. Okay, so what we finally found is different activities which are required to be done is if you are going for leveling mode in curves, smoothing mode, we are providing general lift. Then is general lift, two corrections are required to be given in curve, K correction for horizontal curve and X correction for vertical curve. Longitudinal level,
of the track, all short wave defects will be eliminated. When we are going for design mode of damping, in that case, target height or lift value, that is y, is required to be calculated after surveying your track कि कहाँ पर कितना lift चाहिए. Then super elevation at each location and these two correction, k and x correction, इस केस में भी आपको देना है to be given to the lift value. जो भी lift value उसमें ये correction आपको डालना है. All defects are going to be eliminated. So this is the complete activity as far as leveling of your track is concerned, right? And if you see the complete work or all those data which are required to be written on the sleeper is this value. ये सारे values आपको sleeper पे लिखने हैं. I am just repeating lining and leveling data. Lining was 3-point lining and 4-point lining. So when we talk of lining, we are talking of design mode of lining. So we need to give slew values, which is your front offset value. ये आपको देना है. Then you have to give Versine value for 4-point lining. This is Versine correction. अगर 4-point lining में काम कर रहे हो, if you are working in 3-point lining, this is Versine value. ठीक है ना? So this is the lining data. Leveling data, you have to give lift value at every location. In curve, you have to give cant value at every location, and then you have to go for k and x correction in this lift value. So this is the complete work which is required to be done for proper damping of your track. ये पूरी activities है. अब you can see how much data an operator who is sitting in the front cabin he is required to feed. कई सारे data उसको feed करने होता है. तो इतने सारे डाटा फीड करना फॉर हिम इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. 2 हाथ है उसके पास एंड यू कैन सी हाउ मेनी डाटा. अगर वो 3-point लाइनिंग में डिसाइड करता है तो 1, 2, 3, 4 कर्व में इतने डाटा, ये करेक्शन वो चलो पहले ही कैलकुलेट करके इसने वाई में डाल दिया. स्टिल ही हैज़ टू फीड 4 डाटास. और कभी भी आप मशीन में ये 2 ऑपरेटर जब तक फ्रंट केबिन में नहीं बैठेगा तब तक आदमी नहीं फीड कर सकता है. और कभी भी आप 2 ऑपरेटर को नहीं देखोगे, नॉर्मली एक ही ऑपरेटर फीड करता रहता है. सो इज नॉट फीडिंग कंप्लीट डाटा. वो कुछ को डाटा फीड कर रहा है, नॉर्मली वो लिफ्ट वैल्यू की डाटा फीड कर देता है और एक वर्साइन वैल्यू की डाटा फीड कर देता है या फ्रंट ऑफसेट वैल्यू की. सो कंप्लीट एक्टिविटी नॉर्मली यू विल नॉट बी फाइंडिंग टू बी being performed by our machine operator. So if he has to perform all these activity, he needs to have an additional man in front cabin in addition to himself. एक आदमी और चाहिए, चाहे वो खलासी लेवल का आदमी हो या कोई और चाहिए, तभी वो सारे डाटा फीड कर सकता है. But again, all these activities are not an easy activity. Now for this, because of this complicated arrangement, what has happened in our machine, we have provided an ALC. हम लोगों ने मशीन में एक ALC प्रोवाइड किया हुआ है. I'll just show you what that ALC is. नाम सुना है किसी ने ALC का? नहीं सुना है. Yes, sir. सुना है? Okay. So I'll just show you what this ALC is. ALC is a computer. मैं इसको ALC को ही बोलता हूँ सॉफ्टवेयर को. So there is a computer in your software, and this computer has this kind of screen. ये एक स्क्रीन दिखेगा जब आप जाओगे मशीन पे, तो आपको इस कंप्यूटर पे एक इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा. इस स्क्रीन में अगर देखो, इसको देखो लिखा हुआ विन ALC, विंडो ALC. नाउ दिस ALC इज अ कंप्यूटर विच कैन टेक योर डाटा. अगर आपने सारा कैलकुलेशन पहले कर रखा है, जो ऑपरेटर भी इतना कुछ फीड कर रहा है, फिर वो मशीन मैनुअल से इज टेकिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, NT, RT3, RT4. सो इफ पर्टिकुलर ALC इज इन सपोज MPT मशीन में हमने डाल रखा है, तो MPT मशीन के कॉर्ड के पोजीशन के हिसाब से ऑल दीज फैक्टर्स दिस मशीन नोज, उसको अपने सारे फैक्टर पता है. ठीक है ना? तो अगर आपने ट्रैक की ज्योमेट्री उसको बता दी कि दिस इज द ट्रैक आई वांट टू अचीव. सपोज यू हैव अ ट्रैक एंड सपोज यू वांट अ रेडियस ऑफ से 875 मीटर. आपने बता दिया मुझे इस कर्व को ठीक करना है. माय फाइनल रेडियस इज 875, माय ट्रांजिशन लेंथ इज 70 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने अगर उसको दे दिया, तो मशीन विल ट्राई टू अचीव दैट कर्व इफ यू फीड सम वैल्यूज इन द ALC. ALC में अगर आप वो डाटा डाल देते हो, तो ALC में डालने के लिए मैं इसको देखो दिखाता हूँ क्या क्या दिया हुआ. पहला बटन है दिस बटन. इट सेज दैट यू कैन गिव द ज्योमेट्री ऑफ योर ट्रैक दैट यू वांट टू अचीव. नाउ सपोज मैं एक ज्योमेट्री लेता हूँ. लेट मी ट्राई टू फीड दिस ज्योमेट्री ऑफ द ट्रैक. मेरी ट्रैक स्टार्ट हो रही है सपोज 253 किलोमीटर से. आई विल से 253, 1, 2, 3. यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रही है. ज्योमेट्री दिस इज अ स्ट्रेट ट्रैक एंड दिस स्ट्रेट ट्रैक गोज टू सर्टेन डिस्टेंस. कैंट यहाँ स्ट्रेट में 0 है. इट इज स्ट्रेट अप टू 253,500. यहाँ तक ये ट्रैक स्ट्रेट है.
उसके बाद यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है. जैसे कर्व स्टार्ट होता है, यू गो टू नेक्स्ट पार्ट. ये बोलता है इसकी ज्योमेट्री क्या है. यहाँ से लीनियर मीन्स योर ट्रांजिशन इज गोइंग टू स्टार्ट. सो यू विल से ट्रांजिशन इज गोइंग टू स्टार्ट. ट्रांजिशन की लेंथ कितनी है? सपोज ऐसे 70 मीटर, मैंने 70 मीटर लिखा. लीनियर कैंट भी लीनियरली इंक्रीज करेगा. इफ यू सी दिस इज द फर्स्ट पोजिशन. इज द माउस नहीं दिख रहा है क्या मेरा? नहीं दिख रहा है. ओके, सो दिस इज 70 मीटर मीन्स योर कैंट इज ऑल्सो टू बी लीनियरली इंक्रीजिंग इन दिस 70 मीटर लेंथ. 70 मीटर आने के बाद इसने अपने आप, यू कैन सी इट इज प्लॉटिंग योर कर्व. ये ऊपर में ग्रीन लाइन दिख रहा है जो ये कर्व आपके प्लॉट कर रहा है. सो इट हैज टेकन अ ट्रांजिशन लेंथ 70 मीटर. देन आफ्टर दैट योर सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट. सो ट्रांजिशन सर्कुलर, सो इट विल से कॉन्टिन्यूअस रेडियस. रेडियस की वैल्यू कितनी है? एक एरो दिखता है यहाँ पर. यू कैन सी दिस एरो. ये एरो दिख रहा है. एरो मीन्स सेंटर ऑफ द कर्व इज ऑन राइट साइड. अगर ये एरो इस डायरेक्शन में, अगर आप इसको क्लिक करोगे, अगर उल्टा कर दोगे तो वो लेफ्ट साइड में होगा. सो आपने इसको एंटर किया. एरो ऑफ द कर्व shows that center is on this side. So it will say what is the radius of this curve. I say it is 875 मीटर. फिर यहाँ पर कैंट जो है सुपर एलिवेशन, अगर ये सेंटर राइट में है मीन्स लेफ्ट रेल इज गोइंग टू बी हायर. सो यू कैन सी देयर इज एन एरो व्हिच शोज कि लेफ्ट रेल इज हायर. तो एरो का डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन से अपोजिट है. कैंट सपोज आई से दिस इज 80 मिलीमीटर. मैंने 80 मिलीमीटर एंटर कर दिया. यू कैन सी इट इज प्लॉटिंग माई कर्व. ऊपर वो कर्व प्लॉट करता जा रहा है. Then my curve ends at say 253 770 पे एंड कर रहा है. अगेन कर्व के बाद लीनियर ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है. सपोज दिस आई टेक ऑल्सो हैज 70 मीटर लेंथ. लीनियर 20 मीटर. 253840 ऑटोमेटिकली इसने लिया. इसके बाद मेरी ट्रैक स्ट्रेट है, राइट स्ट्रेट है, कैंट 0. ठीक है ना. ये स्ट्रेट हमारी कहाँ तक जा रही है? सपोज आई टेक दिस वैल्यू एज 254,000. मैंने यहाँ तक इसको स्ट्रेट लिया. इसको चेंज कर देता हूँ. आई टेक दिस एज स्ट्रेट. सो आई हैव प्लॉटेड माई कर्व. यू कैन सी इन दिस केस यू हैव गॉट 3 पार्ट इन दिस डायग्राम. वन इज फॉर योर अलाइनमेंट. ये पहला पार्ट अलाइनमेंट बता रहा है. सेकेंड पार्ट इज योर कैंट. थर्ड पार्ट इज योर लेवल. लेवल अभी हमने इसको नहीं बताया. बेसिकली आई एम टेलिंग द मशीन कि ये ज्योमेट्री मुझे चाहिए. यहाँ से यहाँ मुझे ये ग्रेडियंट चाहिए, यहाँ से यहाँ मुझे, इसके बाद डाउन ग्रेडियंट, इसके बाद अप ग्रेडियंट, या मेरी वर्टिकल कर्व क्या होने वाली है. सो आई हैव फिल्ड इन दिस फर्स्ट पार्ट, आई हैव फिल्ड दिस पार्ट. वन इज डायरेक्शन, दैट इज अलाइनमेंट, देन कैंट, एंड देन एट द बॉटम आई एम गोइंग टू फीड इन दिस, आई एम गोइंग टू फीड माई ग्रेडियंट कि मेरा ग्रेडियंट क्या है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2530. मान लो मेरा स्लोप आता जा रहा है 1 in 500 का स्लोप आ रहा है. सो दिस इज 1 in 500 स्टार्ट ऑफ स्लोप. आई एम कंटिन्यूइंग. मैं 1 in n के टर्म में बात करना चाह रहा हूँ. दिस इज अ राइजिंग स्लोप. यू कैन सी अ डायरेक्शन हैज बीन शोन. लेट दिस स्लोप बी 1 in 500. ये कहता है पार्ट पर 1000 पीपीटी के फॉर्म में भरने के लिए. सो 1 in 500 मीन्स 2 in 1000. सो लेट इट बी, आई हैव एंटर्ड 2. एंड दिस स्लोप, start of slope must be the first element. Okay, ठीक. यहाँ पर इसने यहाँ से ये स्लोप दिखा रहा है कि आपकी 2 जा रही है. एंड दिस स्लोप सपोज दिस गोज 1 in 500 अप टू 253,200 यहाँ तक जा रहा है. आफ्टर दैट देयर इज अ डाउन स्लोप. डाउन स्लोप अगर मैं फिर यहाँ पर 1 in n की वैल्यू लेता हूँ, एंड दिस सपोज 1 in 1000 का स्लोप है. आई टेक इट एज 1. इट सेज देयर इज अ slope difference of more than 1 ppt. So do you want to have a transition curve? कोई transition curve चाहना चाह रहा हूँ. We don't have transition curve in our vertical curve. I say no, I don't want. जो भी है मेरा, this is fine. अच्छा, without transition curve. So okay, and this continues up to 254. 1 2 3 यहाँ तक गया. Then I close this. So if you see this, I have plotted the complete curve, and this is the geometry that I want. ये मेरी geometry है जो मुझे चाहिए. So there is a slope change at this location. This is my alignment. This is my can detail. अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ. So for saving, you go to this one, save this, और इसको मैं geometry आज के डेट पे सेव करता हूँ. Today's
मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है ना. सो आई हैव गॉट दिस. नाउ आफ्टर दिस, दिस इज द ज्योमेट्री आई हैव गॉट, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. बट फॉर अचीविंग दिस कर्व, जैसे हम लोगों ने रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व किया था, लेवल लिया था, दिस इज दैट पार्ट कि मुझे फाइनल कर्व मालूम है, मुझे फाइनल लेवल मालूम है. बट फॉर एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ द ट्रैक है, दैट इज नॉट नोन टू द मशीन. सो यू विल हैव टू टेल कि कितना फ्रंट ऑफसेट एग्जिस्टिंग पोजीशन से है, कितना लेवल करेक्शन रिक्वायर्ड एट एवरी लोकेशन है. दैट इज एफडी एंड वाई वैल्यू विल बी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मशीन. अलग से आपको देना पड़ेगा. So what we will do, we have another file which says that what is the front offset value and what is the level correction value. So like I say, this is my serial number, 0 से मैं start करता हूँ. Position मैंने वही लिया 253,000 और यहाँ पर मैंने कहा कि front offset राइट में मुझे करेक्शन करना है. सपोज ऐसे दिस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मुझे करेक्शन करना है राइट में. यहाँ पर लिफ्ट कितना करना है, सपोज ऐसे दिस मुझे 20 मिलीमीटर करना है. देन आई कम टू दिस एज 1 और मैंने यहाँ से हर 50-50 मीटर पे मान लो मैंने मेजर किया है 253,000, मैंने 50 मीटर पे करेक्शन किया है. सपोज माई करेक्शन एट दिस लोकेशन इज ऑन अपोजिट साइड, मैंने अपोजिट साइड में इसको किया. सपोज दिस इज 20. सो दिस इज द डायरेक्शन, जो मेरी कर्व की अलाइनमेंट डिफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंगली आई विल गो ऑन फीडिंग दीज वैल्यूज. 28 मैंने फीड किया. So automatically next at every 50 meter it is asking me कि क्या level correction है. तो मैंने इसको ऐसे ही enter करना start कर दिया at random. You can feed any values just to tell you how this data is taken. मैंने इसको enter कर दिया ILC में till my end point that is 254,000. मैं इसको enter करता जा रहा हूँ. You can have any value. मैंने ऐसे 00 कर दिया है. I'll take this file. So this is what I have made. इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ. I get another file of front offset value. This is again 17,721. So now I have got these two files. अब मेरी मशीन को ये पता है कि what is the alignment required, what is the level correction, what is the final level required, and what are the front offset value, FD and lift value. ये दो information मशीन को पता है. Then we will ask the machine कि we have fed this into the ALC in advance. We will ask the machine to correct my track. So for correcting my track, you can see this is a yellow button. आप इस पे एक बटन दबाते हो. Since it is not connected to the track, ये automatically कुछ पूछ रहा है. The moment you click this, you can see this. There is a working, you can say file it is taking. For geometry, it has taken the file जो मैंने enter किया था. Front offset के लिए मैंने कहा कि you take this file. तो ये दोनों फाइल अब इसने लिया and now this machine is going to correct your track. अब ये करेक्ट करेगी ट्रैक को. स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर हमने लिया था 253,000 लिया था, उससे 18.8 मीटर आगे इसका फ्रंट ट्रॉली होता है. तो ये जो ब्लू लाइन है ये फ्रंट ट्रॉली का लोकेशन बताता है कि फ्रंट ट्रॉली कहाँ पर है. सो अकॉर्डिंगली इट हैज प्लेस इटसेल्फ एट दैट पोजीशन. एंड पॉइंट मैंने 254,000 लिया था. इट विल ऑलवेज टेक 100 मीटर बियॉन्ड दैट. तो इट हैज टेकन दीज 2 पॉइंट्स. It says that some basic lift if you want in addition to whatever you have given. Suppose I say I want basic lift of 20 millimeter. तो यहाँ पर आपको रैम भी देना पड़ेगा. So रैम 1 in 1000 के हिसाब से मैंने 20 मीटर पे डाल दिया, right? Then it will say किस सिस्टम में आपको करना है, 3 point लाइनिंग में करना है, 4 point लाइनिंग में करना है, आपको किस में करना है. So इस केस it is taking 3 point लाइनिंग only. इस केस में 3 point लाइनिंग ले रहा है, but it can work in 4 point लाइनिंग also. So the moment you click this one, it says there are certain very high value of correction. So this complete screen will come now in your ALC before you start your work. So this is the alignment that you want. This is the cant that you want. This is the level that you have decided. Gradient, यहाँ पर gradient change है. And for achieving this alignment, this is the front offset value and level correction. मैंने 00 दे दिया था, इसीलिए straight line आ रहा है. Otherwise, it will have some values. ये values आएगी. At the top, you will find the values as per the movement of this cursor. This cursor is front trolley location. Front trolley जैसे move कर रही है, उसके हिसाब से cursor move कर रहा है. So if you see this, the actual location of front trolley has been given as 253,018. 18 मीटर from the working trolley location उसका distance है इस मशीन के लिए जिसका ALC है ये. So यहाँ से आपकी working location 253,000 पे ये जो red point दिख रहा है यहाँ पर, और इसके इतना आगे ये front trolley location है. Now as you move front trolley, it will automatically take lining method हमने क्या लिया है 3 point. रेफरेंस रेल हमने क्या लिया है राइट रेल. इस लोकेशन पे वर्साइन क्या है 0. फ्रंट ऑफसेट
हमने हर 50 मीटर पे दिया था, ऑटोमेटिकली इसने इसको इंटरपोलेट करके हर ये जैसे डियोमेट्रिक किया तो हर दो स्लीपर पे इसने इंटरपोलेट कर लिया है. सो इन दिस केस दिस फ्रंट ऑफसेट इज कमिंग एज -1. तो ये फ्रंट ऑफसेट इसने अपने आप ले लिया. दीज आर द टू फाइल्स इट हैज टेकन, ज्योमेट्री फाइल, फ्रंट ऑफसेट फाइल, ये ले लिया. एंड दीज आर द, यू कैन से, दीज आर द कैंट वैल्यू. अलग अलग लोकेशन पे कैंट वैल्यू कितनी आ रही है और ये लिफ्ट वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपको दिखाता जा रहा है कहाँ पर कितना लेवल करेक्शन करना है. ये सारे वैल्यूज आपको ये दिखाता जाएगा एज यू प्रोसीड. जैसे आप टैम्प करोगे, यू स्टार्ट प्रोसीडिंग, यू कैन सी द वैल्यूज आर चेंजिंग एट द टॉप. This way this machine will come to the end and correct your track. Now in the process we saw in theory lot of things are required to be done. अगर मैं 3 पॉइंट में करता हूँ, I need to know the Versine values. Versine diagram एक मैंने आपको बना के दिखाया था. So since the machine for all those Versine diagrams calculation, what you require is you require the radius of the final curve, you require the length of transition of the final curve, and you require machine property. So this ALC you have, in ALC you have fed the geometry. उसको radius आपने बता दिया, length of transition बता दिया, and this ALC is customized for a particular machine, so it knows the chord length also. So whatever Versine is to be taken, it will automatically take by itself. Whatever K correction, whatever X correction, जो भी उसको लेना है वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. ALC will automatically calculate and feed it at the right position. So this curve will be corrected by you automatically. Broadly समझ में आया क्या किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is one mode. I will take 5-10 minutes more. मैं ALC ताकि cover कर लूँ. This is the last class I have. So this is one mode of working where I know the geometry that I want to achieve. That is design mode of tamping. इसको हम कहते हैं design mode of tamping using ALC. तो you know the geometry or you can say it is a known track geometry mode. मुझे geometry मालूम है कि मुझे क्या achieve करना है. But कई बार क्या होता है और normally in Indian Railways you will not find anyone working with this method of working. कोई इस method से काम नहीं कर रहा है. I am deliberately emphasizing on these things because you will be the agent who will be posted. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस मोड में काम कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहा है. People have now started, कुछ लोगों ने start किया है. What people are doing is, in your machine there is another capability which we are using, and that capability is called measuring run mode. Measuring run mode means you can run your machine on your track in advance before correcting your track. और machine क्या करेगी? It has a moving chord. In that moving chord it will measure everything. पूरे यहाँ से वहाँ तक के ट्रैक का Versine मेजर कर लेगी. वो Versine मेजर कर लेगी, सुपर एलिवेशन मेजर कर लेगी. So instead of you measuring the complete data, machine will measure all these data. और वो डाटा जो आपको मिल जाएगा उसके बाद आप डिसाइड करोगे मुझे क्या अचीव करना है. सो व्हाट दैट वर्किंग सिस्टम इज. नाउ यू कम टू थर्ड पार्ट. ये देखो ये एक पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, एंड दिस इज योर मेजरिंग. स्टार्ट मेजरमेंट मीन्स नाउ यू वांट मशीन टू रिकॉर्ड योर ट्रैक ऑल्सो. आप मशीन से चाहते हो कि वो ट्रैक भी रिकॉर्ड कर ले. आपने पहले कोई कैलकुलेशन नहीं किया, यू डिडंट डिसाइड योर फाइनल कर्व, यू डिडंट कैलकुलेट योर एफडी एंड वाई वैल्यूज, आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया. आप चाह रहे हो कि वो भी काम आपके लिए मशीन ही कर दे. तो दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग. आप इसको जैसे क्लिक करते हो, सो मशीन आपसे बोलता है कहाँ से रिकॉर्ड करना है. स्टार्ट पोजिशन, लाइक इन माई केस आई विल से आई वांट टू रिकॉर्ड फ्रॉम 253,000. अप डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके. सो द मोमेंट आई से दिस स्क्रीन विल कम and this is the location of front trolley. ये front trolley और ये जो लोकेशन है ये 253 यहाँ दिखा रहा है. जो ब्लू लाइन है उसका लोकेशन यहाँ रेड में दिखाता रहता है हर समय, तो ये रेड में दिखा रहा है, ठीक है ना. एंड देन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग. मैं इसको रिकॉर्ड कर, मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ कर्सर को. द मोमेंट आई रेज, एक्चुअली दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द ट्रैक. सो चूंकि ट्रैक नहीं है तो ये अजीब सा रिकॉर्डिंग कर रहा है. सो इट हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. जैसे मैं बढ़ाता हूँ कर्सर को, एज द मशीन मूव्स, what it is recording in the first part, it is recording the alignment. For recording the alignment you have to select one rail as the reference rail. So वो आप machine के knob से you will select one rail as the reference rail. It will record the alignment of that rail. Similarly in this portion it is recording the cant, and the last portion it is recording the level of the track. But when it is recording this level of the track or alignment of the track, what it is doing is it is recording in the chord length. ये कॉर्ड लेंथ में रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब 15-20 मीटर की जो कॉर्ड लेंथ है. इवन स्ट्रेट ट्रैक में भी इट इज रिकॉर्डिंग इन अ स्मॉल कॉर्ड लेंथ ऑफ 15-20 मीटर. सो इट इज बेसिकली मेजरिंग द Versine इवन इन योर स्ट्रेट ट्रैक. सो अगर स्ट्रेट ट्रैक में आपकी अगर कोई बहुत ही लॉन्ग डिफेक्टिव कर्व बन गई है तो वो उसको छोटे छोटे में अगर रिकॉर्ड करेगा
तो यू कैनॉट डिसाइड द फाइनल स्टेट अलाइनमेंट जो आपको चाहिए, वो छोटे छोटे वर्साइन रिकॉर्ड करता जाए एज इफ इट इज अ कर्व। मे बी यू विल, अगर आप एक सर्वे करते टोटल स्टेशन से या थियोडलाइट से, यू वुड हैव नोन कि मुझे लॉन्ग अलाइनमेंट यहाँ डिफेक्ट है, मैं यहाँ से यहाँ तक अलाइनमेंट डिफेक्ट ठीक करना चाह रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू माई एफडी वैल्यूज। बट अगर आप छोटे छोटे कॉर्ड में मेजर करोगे तो मे बी आप फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड करने में इट वोंट बी वेरी कंफर्टेबल, बट दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रिकॉर्डिंग योर अलाइनमेंट। सो फॉर कर्व इट इज फाइन, वी हैव अ 20 मीटर कॉर्ड, मशीन हैज अ कॉर्ड। कर्व में जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे मशीन ने भी कॉर्ड में वर्साइन रिकॉर्ड कर लिया, बट स्टेट सर्टेनली it is for state also it is recording in a small chord, which is not a very advisable method, but somehow it has recorded your track now. So level lining record कर लिया, can record कर लिया और level record कर लिया। ये जो blue line है, जहाँ पर ये blue line है वहाँ जो value है वो यहाँ दिखाती रहती है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर रिकॉर्ड करने में your radius is 264, इस लोकेशन पे your cant is 33.3, at this location your level is -44.8. So this value will be, you can see, जहाँ भी आप ये blue line को ले जाओगे, you can see what the value is. So accordingly everything has been recorded. Now during this recording, in this machine आप record कर रहे हो, now suppose you are at this point, you find there is some obligatory point, क्योंकि आप record कर रहे हो, ऑपरेटर जा रहा है तो ही नोज कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ कर्व, दिस इज द एंड ऑफ कर्व, तो आप ये सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहोगे। यू कैन सी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर है, इट से दिस इज अ लाइनिंग मार्कर, लाइनिंग मार्कर मींस स्टार्ट ऑफ कर्व, तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो, यू विल क्लिक दिस वन, द मोमेंट यू क्लिक दिस वन, ये यहाँ पर ऑपरेटर को दिखा देगा एक मार्क इसने बना दिया। फिर एज यू मूव फॉरवर्ड यू फाइंड देयर इज अ स्मॉल ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज आ रहा है, और ये या पहले एक लेते हैं, यहाँ पर एक कंस्टेंट है, कंस्टेंट मींस देयर इज अ टावर वेर यू कैनॉट स्क्रू योर ट्रैक बाई वेरी लार्ज वैल्यू, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, ये ऑलरेडी इसको मार्क कर देगा कि यहाँ पर एक टावर है एंड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट विल आस्क यू। देन अगेन यू कम टू एक लोकेशन आता है जहाँ ब्रिज है, वेर यू कैनॉट प्रोवाइड अ स्लू, कुछ कंस्टेंट्स है, तो एक लेंथ है उसकी 10 मीटर 15 मीटर, तो यू क्लिक दिस वन, सो इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग कि ये एक पैच है जहाँ पर कि देयर इज सम कंस्टेंट, फिर जैसे ये क्लोज होता है यू क्लिक दिस वन, यू मूव फॉरवर्ड। सो अकॉर्डिंगली as you go on recording your track, you can record all these important obligatory points जो आपको पूरे ट्रैक में मिलता है। So what machine operator does as he is starting the recording, start of transition, end of transition, all obligatory points, जहाँ उसको लगता है कि मुझे कैलकुलेशन जब मैं बाद में करूँगा उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड कर लेता है। So you go on recording like this, once you have recorded, ये रिकॉर्ड इस टाइप का नहीं आएगा, अच्छा रिकॉर्ड आएगा। So once you have recorded, you एंड द मेजरमेंट, ठीक है ना, आपने मेजरमेंट को एंड किया एंड यू सेव द मेजरमेंट, आपने इसको सेव कर लिया, सेव किया, लेट दिस बी, मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, मेजरमेंट 3 में नाम देता हूँ, सेव दिस एज मेजरमेंट 30, नो आई हैव सेव्ड दिस, ठीक है ना, इसको मैंने सेव कर लिया। नो आफ्टर वंस आई हैव डन दिस, अब मुझे क्या करना है कि इस अलाइनमेंट के बेसिस से मुझे फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड करना है कि अब मुझे फाइनल अलाइनमेंट क्या चाहिए। तो मैं इस वाले फाइल को नहीं लूँगा, आई विल टेक सम गुड फाइल, इसको मैं निकालता हूँ, लेट मी टेक सम अदर फाइल। सो फ्रॉम रिकॉर्ड लेट मी टेक अ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट में लेता हूँ कोई रिसेंट, कोई 21 15/7, लेट मी टेक दिस, पुणे डिवीजन का एक मेजरमेंट है, लेट मी टेक दिस मेजरमेंट। सो दिस इज व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑफ इन अ कर्व इन पुणे डिवीजन, ALC पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द अलाइनमेंट, देयर इज अ कर्व, there is a cant corresponding to this curve and this is the level. Now once you have recorded this, bottom पे ये एक वैल्यू आ रही है जिसमें कि ये बता रहा है कि स्टार्ट एंड, ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसमें इसने कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स नहीं बनाए, अदरवाइज यहाँ पर ये सारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट जो मैंने मार्क किया था, जितने डॉट्स मैंने मार्क किए थे वो सारे डॉट्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। इन्होंने पुणे डिवीजन में इसको मार्क नहीं किया तो ये डिटेल इनको नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यू कैन मार्क दीज पॉइंट्स here, then you are going to restrict your slews कि यहाँ पर मैं 10 मिलीमीटर आउटसाइड या 15 मिलीमीटर इनसाइड से ज़्यादा स्लूज मैं नहीं दे सकता हूँ। So this provision is already there, but since this was not recorded, so it is not there. So let me do this. Oh shit, ये बंद हो गया क्या? बंद हो गया। Okay, so this is the curve. Now what you have to do is you have to decide your final cant, final alignment, ये सारा आपको डिसाइड करना है।
डिसाइड करने के लिए अब मैं लेट मी गो टू चूजिंग माई कैंट फर्स्ट. इसको मैं देखता हूँ, अब मैं कैंट अपना ठीक करना चाहता हूँ. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर फाइनल कंप्यूटेशन, पहले कंप्यूटेशन पे जाओगे, स्टार्ट कैंट, एंड देन यू विल गो फॉर दिस कैंट. कैंट के लिए यू नो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट योर कैंट इज टू बी 0. तो यहाँ पर एक इस पे जब मार्कर पे जाओगे तो ये नॉमिनल कैंट की बात करता है. यू क्लिक दिस वन, व्हाट इज द कैंट रिक्वायर्ड. मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे कैंट 0 चाहिए. आई वांट दिस कैंट इक्वल टू 0. ओके, इट विल से ओके. इस लोकेशन पे क्या कैंट चाहिए. आई अगेन क्लिक दिस वन, आई से आई वांट 0 एट दिस पॉइंट. सो इट हैज प्लॉटेड दिस. फिर मैं इसको आगे जाता हूँ. लेट मी कम टू दिस पॉइंट. अप टू दिस लोकेशन मुझे सर्कुलर कर्व का कैंट इसके हिसाब से 150 आ रहा है. लेट मी कीप दिस एज 150. मैंने कहा ओके, ठीक है ना, मैं कैंट ये चाहता हूँ. देन आई अगेन गो फॉरवर्ड. आई एम डिसाइडिंग माई फाइनल कर्व, मुझे क्या चाहिए. सो अकॉर्डिंगली इट विल करेक्ट द कैंट. यहाँ मैंने 155 दिया था. लेट मी कम टू दिस पॉइंट. मैं कर्सर से मूव कर रहा हूँ, यहाँ भी 155 है. ओके, देन आई विल कम टू एंड ऑफ दिस ट्रांजिशन. मैं यहाँ जाऊँगा. आई विल अगेन क्लिक दिस वन. आई वांट कैंट इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट. ओके, एंड देन दिस आई विल गो अप टू लास्ट लोकेशन. फर्स्ट पार्ट इज आई एम करेक्टिंग माई कैंट. मैंने यहाँ किया, आई वांट कैंट इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट. सो इसने कैंट इसको 0 ले लिया. सो आई हैव नाउ डिसाइडेड कि मेरा कैंट क्या रहेगा, एंड दिस इज आई हैव फेड माई कैंट. मुझे अब ये कैंट ये चाहिए. आफ्टर कैंट यू कैन सी कैंट मैंने फाइनलाइज कर लिया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन मैंने फाइनलाइज कर लिया, कैंट मैंने फाइनलाइज कर लिया. देन आई विल गो टू माई अलाइनमेंट करेक्शन. मुझे अलाइनमेंट क्या चाहिए. इसमें एक कंप्यूटेशन किया हुआ है. आई डोंट थिंक आई कैन डिलीट दिस. No, I cannot delete this. It cannot be deleted. But suppose इसमें एक computation किया हुआ है इसने. But ये computation कैसे करते हैं? When you are going for alignment correction, now this machine ALC is not going to ask you कि आपको क्या radius चाहिए, क्या वर्साइन चाहिए. This information it is not going to ask you. What it is going to ask you is यहाँ पर पहला जब computation करते हो वर्साइन computation, click this one. It says what is the speed potential of your curve. आपकी कर्व की स्पीड पोटेंशियल क्या है. सो इट विल एवरेज आउट योर कर्व एज पर योर स्पीड पोटेंशियल. सो इट इज नॉट गिविंग यू अ डिजायर्ड कर्व. जैसे हमने डिजाइन मोड में मैंने कहा कि मुझे ये रेडियस चाहिए, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन चाहिए. इन दिस मोड, मेजरिंग रन मोड, इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ डिजाइन कर्व. इट विल एवरेज आउट माई कर्व. सो जैसे मैंने कहा कि मेरी सेक्शन की स्पीड पोटेंशियल 80 to 120 है. मैं लेफ्ट हैंड में 50, राइट हैंड में 50, ज़्यादा स्लो में परमिट नहीं कर सकता हूँ. ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल सजेस्ट अ कर्व. इसने बताया कि ये आपका कर्व आ रहा है एंड दिस इज द स्लू एट डिफरेंट लोकेशन. दीज टू लिमिट्स ऑफ 15 मिलीमीटर हैज बीन गिवन. और ये आपकी स्लूज आ रही है. सो इफ यू सी दिस कर्व, यू कैन सी इसने एवरेज आउट कर दिया है. यहाँ से यहाँ तक इस कर्व को एक एवरेज करके बना दिया. मुझे लगता है कि नहीं यार, ये कर्व बहुत अच्छा नहीं है. आज के डेट पे व्हाट वी आर डूइंग, जैसे हमें ये कर्व मिलता है, वी आर सेटिस्फाइड. हम कहते हैं कि ठीक है, यही कर्व इज द बेस्ट कर्व एंड वी टैम्प आवर ट्रैक एज पर व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय द मशीन. जो मशीन सजेस्ट करती है हम उसके हिसाब से ट्रैक को ठीक कर दे रहे हैं. But in this ALC, there is an additional provision, which again, as I mentioned, only few people are using. Few people means 1 or 2% people are using. Otherwise, एक बार जो ALC ने suggest कर दिया, हम उसके हिसाब से tamping start कर देते हैं. हम इसको save कर लेते हैं. We say okay, fine, we'll tamp it. But in this ALC, there is another provision where you can modify this curve, जो ALC ने suggest किया है. For that, what you have to do, ये देखो यहाँ पर एक constant area करके एक arrangement दिया हुआ है. Click here. Constant area means from this point to this point, you are going to have a straight track. You want your versine to be 0. आपको यहाँ से यहाँ तक वर्साइन 0 चाहिए. तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ और मैं इसको लॉक कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रैक स्ट्रेट चाहिए. वर्साइन 0 चाहिए, मुझे ट्रैक स्ट्रेट चाहिए. फिर उसके बाद आई एम नॉट टेलिंग कि मुझे कितना रेडियस चाहिए, कितना क्या चाहिए, बट आई एम सेइंग कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ये प्रोफाइल इस टाइप की चाहिए. फिर यहाँ आके मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ये ट्रांजिशन चाहिए एंड दिस ट्रांजिशन अप टू दिस पॉइंट. मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन चाहिए. आई एम ओनली सजेस्टिंग, मशीन विल डू ऑटोमेटिकली. ये मुझे लीनियर चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया. फिर ऐसे आफ्टर दैट आई वांट अ कांस्टेंट रेडियस. दिस इज माय सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व. अगर इसमें आप देखोगे दिस इज नॉट अ कांस्टेंट रेडियस. देखो अगर मैं ब्लू वाले कर्सर को मूव करता हूँ, यू जस्ट चेक द रेडियस. यहाँ ये रेडियस देखना कितना आ रहा है. देखो रेडियस वेरी करता जा रहा है. 824, 819, 589. सो देयर इज अ वेरी लार्ज वेरिएशन ऑफ रेडियस. आपको दिख रहा होगा. But I want a constant radius. मैंने कहा कि नहीं, you give me a constant radius from this point. This is not acceptable. So I'll come to this point. मैं यहाँ आऊँगा and I'll ask this to fix up the radius. मैं दोनों के बीच में थोड़ा मार्जिन देता हूँ इसके मैनिपुलेशन के लिए, दो ब्लॉक के बीच में. So I've given some margin.
I'll come to this point, this location. I say I want constant radius. I'm not saying what radius. I say I want constant radius. Okay. Then I move further. I come to this point. यहाँ पर आकर के फिर मैंने यहाँ से एक लीनियर कांस्टेंट बनाया. दिस इज द ट्रांजिशन. सो आई हैव कम टू दिस लोकेशन. मैंने इसको लीनियर बनाया. आई से लीनियर ट्रांजिशन. यस. देन आफ्टर दैट मैंने पूरे सेक्शन को जो मुझे टैम्प करना है उसको मैंने फिक्स कर दिया. आप छोटा सा पैच भी फिक्स कर सकते हो, बट आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग इन दिस केस. और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे स्ट्रेट चाहिए. द लास्ट पॉइंट. माई सिलेक्शन कैन बी गुड, इट कैन बी बैड ऑल्सो. अभी मुझे नहीं पता मैंने कैसा सिलेक्शन किया. आई एम गोइंग टू गेट अ बेटर कर और अ बैड कर. अगर मुझे जैसा कर मिलेगा, अगेन आई कैन गो फॉर ट्राइंग. मैं थोड़ा इसको इंप्रूव कर सकता हूँ. सो वंस आई हैव सेलेक्टेड दिस, आई विल से नाउ यू गो फॉर कंप्यूटेशन. दोबारा कंप्यूट करो. स्पीड पोटेंशियल मेरी 80 to 120 है. कंप्यूट दिस. नाउ इट हैज कंप्यूटेड दिस एंड दिस इज द कर्व इट हैज गिवन. इस कर्व को देखते हैं. ये कर्व इसने दिया. यहाँ पर देखो रेडियस ने काफी हद से ठीक कर दिया, बट यहाँ इसने एक किंग क्रिएट कर दिया because it is following certain principles, so it has not given a very good result. So next time again I will change this. मैं constant area को थोड़ा modify करूँगा इस area में. Modify करना बहुत आसान है. आप इसको click करो, you can delete this. Then again you can select a new constant area. इसको delete करो and you can select a new constant area and accordingly you can go for some hit and trial unless you get a very good curve. अभी मैं खाली इसको हटा देता हूँ और मैं इसको दोबारा compute करता हूँ. मैंने दो constant area हटा दिया और मैंने इसको कहा this is the final curve. It is suggesting. Now suppose I accept this curve. मैंने इस curve को accept कर लिया. So I will save this. I will save this curve. Similarly, we have the third portion which we call lining correction. ये मैंने alignment correction किया. उसी तरह level correction का भी एक है. Click this one. Level में भी it will say what is the speed potential. Maximum कितना lift आप permit कर सकते हो. It will suggest me a level. एक मुझे level best suggest करेगा. I can accept this. ये आप देख सकते हो क्या correction है यहाँ आ रहा है different location पे. बहुत छोटा है. -6 -59. तो दिस इज द करेक्शन. और ये करेक्शन ये आपको यहाँ पर यू कैन गो टू अ लोकेशन, फाइंड द लेवल करेक्शन दिस मशीन इज गोइंग टू डू. लेट मी एक्सेप्ट व्हाट मशीन हैज गिवन. मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड माई फाइनल कर्व. मेरा फाइनल कैंट क्या चाहिए, मुझे फाइनल अलाइनमेंट क्या चाहिए. एंड आई हैव डिसाइडेड फॉर फाइनल अलाइनमेंट आई हैव गॉन फॉर कांस्टेंट एरिया कैलकुलेशन. सिमिलरली इन लेवल ऑल्सो आई कैन गो फॉर कांस्टेंट एरिया. मुझे अगर ग्रेडियंट चेंज करना है मैं यहाँ भी कांस्टेंट एरिया के लिए जा सकता हूँ. ठीक है ना. यहाँ भी मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट कांस्टेंट रखना है. तो मैं यहाँ भी इसमें लीनियर ट्रांजिशन करके मैंने डाल दिया एंड आई अगेन गो फॉर कंप्यूटेशन. सो दिस प्रोविजन इज देयर इन योर लेवल करेक्शन आल्सो. सो वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर कर्व इन अगेन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर टैंपिंग. ये फाइनली सबको आपने सेव कर लिया. देन यू गो फॉर टैंपिंग. तो टैंपिंग पे जाओगे तो फिर वही जैसे पहले हमने एंटर किया था. नाउ इन दिस केस वी हैव अ मेजरमेंट मोड. हमने मेजरमेंट किया है. तो हमने ये मेजरमेंट किया. यूज कैलकुलेटेड फ्रंट ऑफसेट. जो मेजरमेंट के बाद जो कैलकुलेशन फ्रंट ऑफसेट का है दैट आई एम गोइंग टू यूज. सिमिलरली यूज कैलकुलेटेड लेवल करेक्शन. जो मेजरमेंट के बाद ALC ने कैलकुलेट किया. सो दोज टू डाटाज नाउ आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस. स्टार्ट पॉइंट इज 0, एंड पॉइंट इज दिस मच. आई गो फॉर. और ये हर समय इस सिचुएशन में ये 3 पॉइंट में ही काम करेगी. यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट. इट विल ऑलवेज बी इन 3 पॉइंट. सो यू गो फॉर नाउ टैंपिंग. कुछ कह रहा है कि यहाँ पर ये एरर है. दिस इज द सिचुएशन. नाउ दिस इज द फाइनल अलाइनमेंट यू आर गोइंग टू गेट. फॉर दैट यू आर फीडिंग दिस एज द फ्रंट ऑफसेट वैल्यू विच इट हैज इटसेल्फ कैलकुलेटेड. ALC ने खुद ही कैलकुलेट किया है. दिस इज द कैंट, दिस इज द लेवल करेक्शन एंड दिस इज द लिफ्ट वैल्यू एट डिफरेंट लोकेशन. एज यू मूव फॉरवर्ड ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है. द डाटा इट इज यूजिंग इज मेजरमेंट दिस वैल्यू, एक्चुअल पोजिशन, लाइनिंग मेथड इज 3 पॉइंट, रेफरेंस रेल, वर्साइन एंड फ्रंट ऑफसेट वैल्यू, Cant value, level correction value. All these values are being displayed. So as you move forward, you can get these values. ठीक है ना. So this ALC is required to be known to you. आपको मालूम होना चाहिए जब आप अभी टाइम है आपके पास. But whenever you go into the machine, kindly see how this operator is using this ALC. आप ALC जब देखोगे तो normally what you will find कि जब एक बार वो मेजरिंग मोड पे मेजरमेंट ले लेता है और फर्स्ट कंप्यूटेशन करता है, he is accepting that as the final. He is not using constant area.
Whereas you will find कि इस केस में this is a very good curve. जो कर्व अभी आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा कर्व है, बट many times you will find it is such a bad curve. जब उसको एवरेज आउट करेगा तो आपको खुद ही लगेगा ये कर्व अचीव करके मैं करूंगा ही क्या फायदा होने वाला है. एवरेज आउट करने के बाद भी योर कर्व इज गोइंग टू बी वेरी बैड. सो यू नीड टू गो फॉर कांस्टेंट एरिया सिलेक्शन. ठीक है ना. सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एएलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच अगेन इज नॉट बीइंग डन. इसीलिए अगर आप यहाँ रहते हैं तो वीड हैव गॉन फॉर सम हैंड्स ऑन दिस, और फील्ड पे जाके आपको किसी मशीन पे एएलसी दिखाया जाता. लेट अस सी अगर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी आपको हैंड्स ऑन कराया जाएगा. बट इन योर फील्ड ट्रेनिंग काइंडली सी हाउ दिस एएलसी इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल. ठीक है ना. एनी कंफ्यूजन? Sir, the first computation, whatever we are accepting, and then we are trying to get constant radius in circular portion. It's like the design mode only, right? We have finalized certain. Okay. Yes, design mode to the extent that you are not suggesting the radius. It is for ALC to calculate and find some radius. Yes, sir. But the same value, we are in a way we are giving them the data as this you have to use to tamp the track. Okay, when what you will find is, जैसे हमने अभी करेक्शन जो किया था, if you see this correction, I don't know whether क्या होता है कि आपने ट्रांजिशन लेंथ जो है, you have chosen 2 points where you want a linear variation. ठीक है ना. Then you have chosen points where you want a constant radius. But when the computation is done, this computation, the result of that computation is not in your hand. As I mentioned, it can give you some radius. Maybe जो radius दे रहा है वो radius आपका acceptable नहीं है. You have gone close to the design mode to some extent, but you are not designing your curve, क्योंकि हो सकता है वो radius आपको दे ही ना जो आपको speed potential के लिए चाहिए, वो कभी आपको मिले ही ना, very likely. ठीक है. मतलब आप जो स्पीड चाहते हो, मान लो आपको स्पीड 160 चाहिए, 160 स्पीड के लिए आप चाहते हो कि बिल्कुल सर्कुलर पोर्शन में मेरी रेडियस जो है 17500 कांस्टेंट हो, बट ये 1750 लाने के लिए आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे. फिर ट्रांजिशन लेंथ में हो सकता है कहीं पर एक किंग डाल दे लेकर के. सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ डिज़ाइन मोड. ये डिज़ाइन मोड नहीं है. अलाइनमेंट में फिर भी आप बहुत हद तक चले आते हो, अलाइनमेंट में फिर भी आप चले आते हो, बट लेवल में तो आप बिल्कुल ही नहीं आते हो डिज़ाइन मोड पे, क्योंकि लेवल में द मेजरमेंट इटसेल्फ इज इन अ शॉर्ट कॉर्ड. छोटे छोटे कॉर्ड पे आपने मेजरमेंट कर रखा है. यू आर नॉट अचीविंग एनी फाइनल लेवल. वो जब भी करेगा वो स्मूथ नहीं करेगा, उसको करेगा ना. Yes, sir. And sir, is it taking into account the adequacy of transition length in terms of the speed potential? I mean, is it? Yes, you are coming close to design mode, but not actually design mode. आप उसको design mode exactly नहीं बोलोगे, क्योंकि जो FD वैल्यू वो ले भी रहा है वो एब्सोल्यूट टर्म में उसने मेजर नहीं किया है. Are you getting me? जो फ्रंट ऑफसेट वैल्यू इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट. ये एक आपने जो वर्साइन उसने मेजर किया है, उसके बाद आप एक बेस्ट फिट कर्व whatever it has measured उसमें एक बेस्ट फिट कर्व निकाल रहे हो. yes, you are trying to get a constant radius in circular portion of the curve, but ये बहुत मुश्किल से exact वर्साइन डायग्राम आपको मिलेगा, but certainly you will come closer to what we are doing. अभी जो हम कर रहे हैं उससे आप बहुत क्लोज आ जाओगे. you will not be achieving a designed curve, but some curve which will be having a some constant radius and a known length of transition, जो कि हो सकता है आज के डेट पे लो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन भी ना हो आपके पास. Yes, sir. Suppose it gives some transition length. Will we be sure that it is adequate from the perspective of RCA and RCD? वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नहीं, it is not taking that into account. This is not taking that into account. When you are taking a transition length, ये आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या अचीव कर रहा है. वही कहना है कि ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी. ठीक है ना? Yes, sir. Thank you. वो ये नहीं बता रहा है, क्योंकि आप ट्रांजिशन लेंथ में कुछ भी डाल सकते हो. इट इज जो मैंने सिलेक्शन किया था, मैं लीनियर हो सकता है यहाँ की बजाय मैं यहीं तक लीनियर कर देता, तो वो इसी के हिसाब से ट्रांजिशन प्रोवाइड करने लगता. यस सर. ठीक है. सो दोस फैक्टर्स इट इज नॉट टेकिंग. सो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ डिजाइन मोड. आप अगर निकालोगे तो आप कुछ और निकालोगे, मैं निकालूंगा तो मैं बेस्ट फिट कर कुछ और निकालूंगा, कोई और निकालेगा तो हो सकता है बेस्ट फिट कर कुछ और निकाल दे. सो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ डिजाइन मोड वेयर यू आर अचीविंग अ पर्टिकुलर कर्व. अ डिजाइन कर्व मीन्स यू हैव डिजाइंड अ कर्व कि मुझे यही कर्व चाहिए. दैट इज एक्चुअली अ डिजाइन कर्व. In this case, yes, you are getting a circular curve to very large extent, but it is not a design curve. So it is not a proper design mode of working, right? But practically, when you go into the field, you will find people think even that this measuring and method of your track is the design mode of tamping. So we have to clarify that this is not design mode, क्योंकि ये smoothen कर रहा है, ये track को जो है ये smoothen कर रहा है पहले calculation में,
And when you go for a constant area selection, yes, you are going closer to a design mode of tamping, but certainly you are not designing a desired curve. वो जो उसमें से वो सजेशन दे रहा है, you are choosing among those कि ठीक है मुझे ये कर्व पसंद आ रहा है, I'll accept this curve. Someone else will select some other curve. So you are not designing a curve. Yes? Yes, sir. Got it. Thank you, sir. सर एक डाउट और है सर, ये मेजरमेंट मोड में जब हम मशीन को रन कर रहे हैं, ये जैसे जो हमें डेटा मिल रहा है, ये कंटिन्यूअस डेटा है और ये कॉर्ड पे मेजरमेंट हो रही है, नहीं, it is ये कॉन्टिन्यूस डाटा है. ये मेरे ख्याल से इसका मेजरमेंट का जो स्पैन है, कॉन्टिन्यूस तो कुछ भी नहीं होता है. ये आई थिंक 0.3 या 0.4 मीटर पे मेजर करता है ये. ठीक है ना? जैसे TRC 0.2. अगर हम मतलब मेजरमेंट जो है वो मशीन से करना चाहें और हम मशीन जैसे ALC के थ्रू हम तुम थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है. थोड़ा जोर से बोलो. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा और. सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं मशीन से कर लें, उसके बाद इस डेटा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या एक्सेल में, जहाँ पे हम अपने से खुद से रियलाइनमेंट ऑप्शन होता है? नहीं, वो नहीं कर सकते. वो नहीं कर सकते. ठीक है ना? इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके फिर एक्सेल का जो आपका जो कैलकुलेशन है, जो ROC कैलकुलेशन है, दैट इज इंटायरली. इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया ये भी नहीं पता. इस डाटा से आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन मूव योर कर्सर एंड फाइंड द वर्साइन वैल्यू एंड अदर वैल्यूज एट डिफरेंट लोकेशन, बट टेकिंग दिस डाटा एग्जैक्टली एज इट इज इनटू एन एक्सेल फॉर्मेट इज नॉट पॉसिबल. ये नहीं है पॉसिबल. मतलब अभी तक हमें नहीं पता है. मतलब वी आस्क्ड अदर पीपल आल्सो, बट इवन दे आर नॉट एबल टू टेल कि आप एक्सेल में ले पाओगे या नहीं. इनका अपना कुछ लैंग्वेज है, उसमें लिखा हुआ है इसमें. ठीक है ना? एक्सेल में नहीं ले पाओगे, आज के डेट पे नहीं ले पाओगे इसमें. अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने दिखाया था, ब्लू लाइन को आप मूव करो और मूव करके उस लोकेशन पे यू कैन गेट द वैल्यू. ये ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करता रहेगा. लाइक इफ आई टेक दिस एज द वैल्यू, व्हाट यू कैन डू इज, इफ आई टेक दिस एज द वैल्यू, तो इसमें क्या है कि जैसे आप ये कर्सर को मूव करोगे, एज यू मूव दिस कर्सर, वैल्यू आपको दिखा रहा है, ये रेडियस दिखा रहा है. तो एवरी टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट द वर्साइन एट डिफरेंट लोकेशन एवरी मीटर. ये डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है कहाँ की वैल्यू है, यहाँ का रेडियस बता रहा है. यू कैन यूज इन दिस वे, यू कैन एक्सट्रापोलेट दिस डाटा, जिससे आप वर्साइन निकाल सकते हो एवरी मीटर पे. सिमिलरली यू कैन फाइंड द कैंट एट एवरी लोकेशन. सो बट दिस हैज टू बी डन इंडिपेंडेंटली. ये आपको इस रिजल्ट को एज इट इज आप ले नहीं पाओगे कहीं भी. यस यस सर. और कोई क्वेश्चन? Okay then. Thank you very much for patient listening. I have taken a lot of time. हेलो सर. Yes, कोई कुछ पूछ रहा है, बताओ. सर, ये इसमें जो लेवल की वैल्यू लिखी है, ये मतलब mm में हमारे पास है, और अगर मेरे को कुछ डिजायर्ड ग्रेडियंट चाहिए लाइक 1/500 और 1/1000, उस केस में मेरे को इसमें मतलब कैसे करना पड़ेगा? इसमें भी कांस्टेंट एरिया का जो मैंने बताया था ना, मैं थोड़ा जल्दी में था, बट आई विल टेल यू. जैसे ये देखो यहाँ पर है, व्हेन आई गो फॉर कंप्यूटेशन, स्टार्ट कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन में जैसे हमने इस केस में यहाँ पर ग्रेडियंट चेंज किया था. लेट मी डिलीट दिस. अब इस लोकेशन पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ग्रेडियंट देना है. एक तो पहली बात, ये लेवल का मेजरमेंट इसने छोटे छोटे कॉर्ड पे किया है. यस, सो इट इज नॉट टेकिंग एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट. जो मैंने कहा था, ये डिजाइन मोड इसलिए नहीं है कि ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं ले रहा है, ये छोटे छोटे कॉर्ड में वर्साइन में मेजरमेंट ले रहा है. तो बट स्टिल इट कैन रेक्टिफाई, थोड़ा बहुत ये काम कर सकता है. जैसे अब मान लो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से इस लोकेशन से इस लोकेशन तक एक ग्रेडियंट रखूँ और यहाँ के बाद मैं कुछ और ग्रेडियंट रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्सर को लाऊंगा यहाँ पर, लेके आता हूँ. इट सजेस्ट, अच्छा इट इज नॉट कि जो मैं बोलूंगा वो करके मुझे दे देगा. इट विल ट्राई टू फिट माई डिमांड, बट अगेन दैट विल बी विद इन द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटेशन जो वो कर पाएगा, बिकॉज इट हैज टेकन ऑल मेजरमेंट इन शॉर्टकट. अब मैं कहता हूँ कि दिस इज द पॉइंट, यहाँ तक मैं एक ग्रेडियंट रखना चाहता हूँ. सो आई विल गो टू दिस वन, आई विल सेलेक्ट अ कांस्टेंट एरिया फ्रॉम हियर. ये लेवल करेक्शन का है, एंड आई विल सेलेक्ट दिस. इसको मैं बढ़ाऊंगा. इट विल नॉट आस्क मी द ग्रेडियंट, क्या आपको ग्रेडियंट चाहिए. ये बोलेगा Yes, ठीक है,
वही सर डाउट था कि ये मतलब डिजायर्ड ग्रेडियंट पे लाइक नहीं 500 1 in 1000 नो इट कैनॉट गिव, दिस कैनॉट गिव, एज आई मेंशन ये दे नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ये वर्साइन के टर्म इसने पूरे लेवल को मेजर किया है, तो ये आपको बेस्ट फिट ही दे पाएगी, एवरेज आउट करेगा। जैसे आपने इसको कांस्टेंट एरिया किया, कांस्टेंट एरिया में आपने कहा कि ये मेरा लीनियर में मानता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, लीनियर मानता हूँ, ये इसको लीनियर मानेगा, एंड देन व्हेन यू गो फॉर कंप्यूटेशन इट विल ट्राई टू मेक इट लीनियर फॉर अ स्पीड ऑफ दिस मच। इसको ये ट्राई करेगा, देखो ये ट्राई किया इसने, बट ये ट्राई करने के बाद भी क्या रिजल्ट दिया है देख रहे हो? यस सर, कांस्टेंट नहीं। हाँ, कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं कहीं किया, बट यहाँ पर कहीं आके फिर ये गड़बड़ा गया। सो यू विल हैव टू गो फॉर लॉट ऑफ हिट एंड ट्राई इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। सो सर्टेनली दिस इज नॉट गिविंग यू अ डिजाइन वैल्यू, ये डिजाइन वैल्यू नहीं दे रहा है आपको। तो आप इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी यूज करके यू कैन डिसाइड अ बेस्ट फिट काइंड ऑफ कर्व दैट यू कैन अचीव, राइट? सो इट इज नॉट अ डिजाइन मोड ऑफ टेम्पलेट। ओके Okay. Okay, then thank you. Thanks a lot for patient listening. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you. Taking